हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण बुलके और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीरीज। सो इन लास्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस इन सीरीज एंड इन प्रीवियस लेक्चर we discussed some basic ideas about the sequence, means what is meant by sequence, convergent sequence, divergent sequence, the bounded sequence, the monotonic sequence. Now how to check the convergence of the sequence, how to check the divergence of the sequence, and from using this all the terms we solve some problems regarding the sequence to check whether the given sequence is convergent or divergent. So next topic is about the series, and it is very important topic of this unit, sequence and series. So the series is an extension of the sequence. So how we define the series? So series is defined as the sum of the sequence is known as a series. Actually sequence की अगर हम सम करेंगे, अगर हमारे पास U1, U2, U3 ऐसे 2-3 सीक्वेंस है, उनके एडिशन करेंगे हम, तो उस एडिशन को जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? सीरीज. द सम ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज ए सीरीज. सो लेट U1, U2, U3, UN with a given sequence, then the expression UN plus U2 plus U3 up to UN is called the series associated with the given sequence. Means the series is the addition of the sequence. When we add the number of sequence, then the resultant obtained is called as series. So for example we consider one UN is 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to so on. So this is the, suppose we take 2n plus 1, then it is when n equal to 1 it is 1, 3, 5, 7. So it is a number of sum of the number of the sequence. So this is called the series. So there are the two different types of the series. One is called the finite series and one is called the infinite series. So if the number of the term of the series is limited, मतलब अगर कहीं पर वो सीरीज एंड होती है, हम काउंट कर सकते हैं कि इतनी 10 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सीरीज बोलेंगे. And when the number of the term of the series are unlimited, because the series, when the series is never end up to so on up to infinity, then it is called as infinite series. So U1, U2, U3 up to UN up to so on infinity is called the infinite series, and the series is denoted by this term, that is summation of UN n equal to 1 to infinity or simply summation of UN. अगर इस पे समेशन नहीं है मतलब ये हमको वही से काउंट करना है 1 to infinity से. सो एक्चुअली जैसे सीक्वेंस में था कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, वैसे ही सीरीज में भी है. तो दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द सीरीज. मतलब हमको चेक करना है कि सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑक्सिलेटरी होगी. तो हाउ टू चेक द नेचर ऑफ द सीरीज? सो वी फॉर दिस वी कंसिडर वन इनफाइनाइट सीरीज. So consider the infinite series. Summation of UN is equal to U1 plus U2 plus U3 up to UN up to infinity. So here the terms never end. Therefore, it is called the infinite series. So to check the nature of the series, we have to consider the n term of the series, because we have to fix some n terms, and we first check that n terms and the what is the which is उसका जो नेचर होगा वो एन टर्म की सीक्वेंस जो बोलेंगे हमको, या लिमिटेड सीरीज बोलेंगे, उस पे डिपेंड करेगा कि वो इनफाइनाइट सीरीज का नेचर क्या होता है. तो वी डिनोट द टर्म दैट इज द एन टर्म ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज बाय Sn, and Sn is called U1 plus U2 plus U3 up to UN. Now after that we have to find the limit of Sn n tends to infinity. अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आती है मतलब ये फिर सीक्वेंस पे चला गया. सीक्वेंस में जो कंडीशन देखी थी हमने वो कंडीशन यहीं पर भी है कि लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो वो सीरीज क्या होगी? कॉन्वर्जेंट. अगर लिमिट इनफाइनाइट आती है तो वो सीरीज क्या रहेंगी? डाइवर्जेंट. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट फाइनाइट आएगी लेकिन लिमिट यूनिक नहीं होगी, मतलब Sn डज नॉट टेंड्स टू यूनिक लिमिट, फाइनाइट और इनफाइनाइट में भी. देन दिस सीरीज इज कॉल्ड द ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सिलेटरी सीरीज. So there are the nature of the series. अगर हम डिस्कस करेंगे तो there are the three types of nature of a series. One is convergent series, one is divergent series, and third is oscillatory series.
तो अगर लिमिट फाइनाइट है तो कॉन्वर्जेंट, लिमिट इनफाइनाइट है डाइवर्जेंट, लेकिन इसमें दोनों में लिमिट यूनिक चाहिए। और लिमिट अगर यूनिक नहीं है, लिमिट निकल रहा है लेकिन वो यूनिक नहीं आ रहा, उसके 2 या 3 आंसर आ रहे, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलेटरी सीरीज। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट इज वी टेक सम एग्जांपल ऑफ द सीरीज, और एक्चुअली सम बेसिक एग्जांपल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ही फाइंड किया है। तो आपको मैं यहाँ पे चेक करके दूंगा कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सो वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल एंड वी आई टेक 3 example on 3 nature, that is one is convergent series, one is divergent series, and one is oscillatory series. So example 1 is 1, examine the nature of the series 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to so on n plus up to so on infinity. So we consider this series as un, so summation of un is given. So to check the nature of the series, we first define the nth term of the series. उसमें से हमको क्या करना है? कुछ n टर्म्स लेनी है। तो हमने Sn ले लिया। Sn क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज 1 2 3 4 अप टू nth। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर पहले n टर्म्स है तो उसके एडिशन रहती है n+1/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका फार्मूला रखेंगे। अभी आपको अगर चेक करना है तो आप ये सीरीज के हिसाब से जो बेसिक है हमारा एपी जीपी एचपी, उसके हिसाब से ही निकाल दे सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर इज n+1/2, तो आपको Sn मिल गया। अभी हमारा काम क्या है कि हमको Sn की लिमिट निकालना है। तो फाइंड द लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, वी गेट n+1/2, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अगर रखा हमने तो ऊपर सिर्फ n है, तो लिमिट गोज टू इन्फिनिटी। और लिमिट इन्फिनिटी है मतलब लिमिट क्या मिल गया आपको? इन्फाइनाइट मिल गई, मतलब एग्जिस्ट नहीं है। तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे हम? Sn क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो Sn डाइवर्जेंट हो गया, इसीलिए समेशन ऑफ un भी क्या हो गया? डाइवर्जेंट। सो देयरफॉर समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। एक और एग्जांपल लेंगे हम। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी। अगेन इस सीरीज को हम un से डिनोट करेंगे। Let summation of un is equal to 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 plus up to infinity. Now again we have to define the sum of n terms, partial sum of the n terms. So we define Sn as 1 + 1/2 + 1/4 plus up to n terms. Suppose these are the n terms. So actually अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर हर एक टर्म में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस मिलता है आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर देखेंगे 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या होगा? 1/4। फिर इसमें डिफरेंस कितना है? 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8, 1/8 इंटू 1/2 इज 1/16। तो अगर हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर आता है मल्टीप्लीकेशन में, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं? जैसे कि इसमें देखो, इसको 1/2 से ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको 1/2 से ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको 1/2 से ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस क्या है हर टर्म में? 1/2 है। दैट इज सीरीज इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है हमारे पास कि फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, उसका अगर आंसर निकालना है आपको तो उसका आंसर का फार्मूला है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो दो टर्म में डिफरेंस है वो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, 1 माइनस कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 1/2। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये 2 मिल जाएगा। तो 2 इज अ फाइनाइट नंबर, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा? 2 ही आएगा। और ये एग्जिस्ट हो गई मतलब क्या हो गया? Sn हो गया कॉन्वर्जेंट। तो Sn कन्वर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगा? कॉन्वर्जेंट। सो समेशन ऑफ un यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? Sn इज इक्वल टू 2, इट इज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगा? कॉन्वर्जेंट। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्वर्जेंट का प्रॉब्लम, एक पहला हो गया हमारा डाइवर्जेंट का प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम लेंगे ऑक्सिलेटरी सीरीज क्या होती है। तो थर्ड एग्जांपल इज ऑक्सिलेटरी सीरीज। तो डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज 2 -2 +2 -2 +2 -2. So this is the series is defined as summation of un, and we take some terms 2 -2 +2 -2 up to continue. अभी एक्चुअली इसमें अगर देखेंगे आप तो कितने टर्म, n मतलब हम देखेंगे कितने टर्म्स है। तो अगर हमारे पास
इवन टर्म है, मतलब 2 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, 8, 10 ऐसे टर्म है, तो हर बार क्या होगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो अगर यन इवन टर्म है तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर यन ऑड टर्म है, ऑड मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 1 होगा तो देखो 2 ही मिलेगा, 3 हो गया तो क्या होगा, 2 2 कैंसिल मतलब 2 ही मिलेगा, 5 होंगे तो क्या होगा, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा मतलब 2 ही मिलेगा। तो जब भी एन ऑड होगा तब आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका लिमिट ही हो गया। तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन इसको 2 लिमिट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक। तो हेंस Sn डज नॉट टेंस टू यूनिक लिमिट। तो देयरफॉर दिस सीरीज इज नोन एज ए ऑक्सिलेटरी सीरीज। सो देयरफॉर समेशन ऑफ un क्या हो गया, ऑक्सिलेटरी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम है, और इसका इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो हमको अलग अलग केस यूज करके उसको चेक करना है कि ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या और कुछ है। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम हो गए, बेसिक प्रॉब्लम थे इसलिए मैंने वो डायरेक्ट प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन लिख लिया, क्योंकि उसमें टाइम कम जाएगा और आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। सो अगले लेक्चर में हम इसके बाद का टॉपिक देखेंगे कि हाउ वी चेक द सीरीज बाय यूजिंग अ डिफरेंट टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।